Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy. So, from today we are going to start our new chapter, our chapter 3, housing and clothing. So, what is housing and clothing? See, the basic knowledge of housing, what is house, why we need house and what type of house are there, ये बेसिक जो थिंग है वो हम स्टैंडर्ड 1 एंड 2 में सीख गए हैं, है ना. एंड what is why we need clothes, how many types of clothes are there, by season which clothes we are wearing. So all of these we learn in class 1 and 2. So in class 3 we are going to learn about good house and clean house and clothing. क्लोथ्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो क्लोथ्स कौन कौन से फाइबर्स से बने हुए होते हैं. So in this chapter we are going to learn about good and clean house and clothes and fibers. Okay, so before we start, let's learn some hard words. So write down in your fair notebook. Open your book, write with your pencil with good handwriting. Okay, write down chapter's name. Chapter 3, housing, 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 and clothing, 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 housing and clothing. Write down hard words. And first word is observe, OBSERVER, observe यानी अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना. Okay, so second one is essential, ESSENTIAL, essential यानी ज़रूरी, जो ज़रूरी चीज़ें है वो. थर्ड वन इज़ फीचर्स, FEATURES, फीचर्स यानी विशेषताएं. Okay, write down with your good handwriting. Fourth one is well lit, WELLLIT, well lit यानी अच्छे से प्रकाशित हुआ. यानी हम यहाँ अगर घर की बात करें तो हमारा घर कैसा होना चाहिए, वेल लीट यानी अच्छे से जहाँ पे उजाला आता हो, ना कि अंधेरा हो घर में. फिफ्थ वन इज़ डिजीज़, DISEAS, डिजीज़ यानी रोग. फिर है सिक्स्थ वन प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी यानी खूब सारा. सेवेंथ वन इज़ वेरेंडा, VERANDAH, वेरेंडा यानी बरामदा, जो घर का खुला पार्ट होता है, उसे हम वेरेंडा बोलते हैं. एट्थ वन इज़ बालकनीज, BALCONIES, बालकनीज यानी घर में बालकनी होती है जहाँ से हम घर से बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं, बालकनीज. नाइन्थ वन इज़ फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स यानी रेशा. यानी क्लोथ्स के बारे में यहाँ बात हो रही है. क्लोथ्स किससे बनते हैं, रेशाओं से बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं. कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न. टेंथ वन इज लिनन, LINEN, लिनन. This is a type of cloth fiber. Okay, so we are going to start our chapter 3, housing and clothing. So in this chapter you will learn about good and clean house, and second thing is clothes and fibers. See, in this chapter we are going to learn about how to
necessary to clean our house and how to necessary to organize our house. Okay, so observe the two kinds of houses given below and answer the following questions. Your first finger is on every line which I am reading. Okay, so concentrate here and put your finger on that line which I am reading. So see, observe here. Here are two kinds of houses. एक है कच्चा हाउस एंड है पक्का हाउस. ये आपने सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा है ना. देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. एंड we also learn that how many types of houses are there. So you have to observe these kind of houses and answer the question given below. यहाँ पे question दिए हैं, उनके आंसर देने हैं. First one is house blank is a weak house. यहाँ पे house A है और house B है. So which one is weak, यानी बहुत ही weak है. तो which house is a weak house? Of course it's कच्चा house A. तो tick the A and write down A. Second one is house blank is a strong house. So which house is strong house? Of course it's house B. Then write down B. Third one is house A is mostly made of blank. हाउस ए है वो किससे मोस्टली बनता है? ये कच्चा हाउस है तो किससे बनता है? मड एंड स्ट्रो. एंड सेकेंड ऑप्शन इज ब्रिक एंड सीमेंट. तो ऑफ कोर्स कच्चा हाउस है वो किससे बनता है? मड एंड स्ट्रो. देन टिक दिस ऑप्शन. फोर्थ वन इज हाउस बी इज मोस्टली मेड ऑफ ब्लैंक. हाउस बी है वो मोस्टली किससे बनता है? मड एंड स्ट्रो. एंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज ब्रिक्स एंड सीमेंट. तो किससे बनता है? ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. सो अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म. अ हाउस प्रोटेक्ट अस, वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? रेन, हीट, कोल्ड बहुत ही ठंडी है, स्टॉर्म है, तो हम कहाँ पे सुरक्षित है? वी आर सेफ एट अवर होम. Whatever be the type of house, it should always be kept clean. किसी भी टाइप का हाउस हो, चाहे वो हाउस ए हो या हाउस बी हो, यानी वो कच्चा हाउस हो या पक्का हाउस हो, इट शुड बी क्लीन, ऑलवेज केप्ट क्लीन. ओके, वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए. सो turn the page number 32. Good and clean house. A house can be big or small. एक हाउस होता है वो बड़ा या छोटा हो सकता है. It can have one or more rooms. उसे एक से ज़्यादा भी रूम्स हो सकते हैं. There are 3 essential features of a good house. पर ये बड़ा हो, छोटा हो या फिर एक रूम हो या ज़्यादा रूम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हाउस हो. तो वो कौन कौन सी है? सी, इट शुड बी वेल लीट, एयरी एंड क्लीन. राइट, के घर है वो वेल लीट होना चाहिए, यानी अच्छे से उसमें सनलाइट आनी चाहिए, बाहर से लाइट्स आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरे दिन हम इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करें, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज सनलाइट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ. सो हमारे घर में सनलाइट आनी चाहिए. इट्स वेल लीट. एयरी यानी उसमें हवा आती जाती रहनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन पंखे और एसी ऑन करके ही रहे, है ना. तो इट शुड बी well lit, airy, and most important thing is
क्लीन, वो क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए. सो what we learn that a house can be big or small. It can have one or two more rooms. But there are three essential features of a good house. It should be well lit, airy, and clean. Living in a clean house helps us stay healthy and happy. See, हम अगर क्लीन हाउस में रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे. क्यों? सी, insects and germs are found in dirty places and spread disease. So living in a dirty house can make us ill. Let us learn some ways to keep our house clean. See, इसमें क्या बोला आपको कि एक अच्छे हाउस में रहना, यानी जो क्लीन हाउस में रहना, वो हमें हेल्दी कर सकता है. पर अगर हम डर्टी इस प्लेस में रहें तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार. क्यों? क्योंकि डर्टी प्लेस में क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, जर्म्स, है ना, और बहुत सारी डस्ट. तो ये इससे हम क्या हो जाएंगे? हम इल हो जाएंगे, यानी बीमार पड़ जाएंगे. तो हम क्या सीखेंगे? लेट अस लर्न सम वेज टू कीप अवर हाउस क्लीन. हमारा हाउस कैसे क्लीन रखना है वो हम सीखेंगे. सो इट इज़ फर्स्ट पॉइंट, सनलाइट. सनलाइट इज़ गुड फॉर अस. सनलाइट हमारे लिए बहुत ही अच्छी है. इट ऑल्सो कीप्स द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स. वो सनलाइट जब हमारे घर में अंदर पड़ती है तो हमारे घर के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. तो इट ऑल्सो कीप्स द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स. सो अ गुड हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन सनलाइट. तो एक अच्छे घर में डोर्स एंड विंडोज़ होने चाहिए. आप सभी के घर में डोर्स एंड विंडोज़ है? यस, होते हैं. बिकॉज आवर हाउस नीड अ गुड सनलाइट. सो अ गुड हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन सनलाइट. सेकेंड पॉइंट, क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी. क्लीन एंड फ्रेश एयर. देखो, हम कभी आप सोचो एक रूम में ऐसे बंद हो जाए, विंडोज़ बंद, डोर बंद, तो क्या होगा? पूरे दिन वो गर्मी होएगी या फिर ठंडी भी है तो भी क्या होएगा? हमें क्लीन एयर नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी. वो पूरा दिन की जो एयर है वही हम यूज़ करेंगे. तो इट इज़ नॉट हेल्दी. क्लीन एंड फ्रेश एयर है, इट कीप्स अस हेल्दी. सो अ हाउस शुड हैव windows and open space such as verandas and balconies to let in plenty of fresh air. तभी हमारे घर में वरंडा होता है या बालकनी होती है जिससे बहुत सारी जो हवा है वो अंदर आ जा सके और हमारा घर एकदम हेल्दी रहे, फ्रेश एंड क्लीन रहे. प्लांट्स अराउंड द हाउस मेक द एयर क्लीन. हमारे घर के आजू बाजू प्लांट्स होते हैं, है ना. हम बालकनीज में प्लांट्स लगाते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट्स है वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर को फ्रेश रखता है. हमारे घर में जो एयर होती है उसे क्लीन रखता है. सो प्लांट्स अराउंड द हाउस मेक द एयर क्लीन. सो हमें हमारे घर में प्लांट्स रखने चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ वायर नीटिंग. वायर नीटिंग इज़ indoors and windows stop the entry of insects such as mosquitoes and flies. See, बहुत सारे घरों में हम क्या करते हैं? विंडोज़ या डोर्स में क्या रखते हैं? ऐसे वायर नेटिंग रखते हैं. देखो ऐसी
नेट रखते हैं, जिससे क्या होता है इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज़, अभी तो मॉस्किटोज़ नहीं है पर बहुत मॉस्किटोज़ थे है ना लास्ट मंथ, तो मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज़ घर में घुस ना जाए इसीलिए हम ये वायर नेटिंग रखते हैं। दे हाउएवर अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन, जिससे क्या होता है ये वायर नेटिंग रखने से हम विंडोज़ भी ओपन रख सकते हैं और उसके अंदर से क्या आ जा सकता है, एयर एंड सनलाइट। नाउ सी, हाउसहोल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन्स। हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट है, हम घर काम करते हैं है ना, हम सारे घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो वेस्ट निकलता है, किचन में वेस्ट निकलता है, तो इट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन्स। वो हमें कहाँ डालना है, डस्टबिन्स में ही डालना है। ऐसा नहीं कि चलो हम फ्लैट में रह रहे हैं तो विंडो से फेंक दिया, इट इज़ नॉट गुड है ना, इट इज़ नॉट हेल्दी। सो इट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन्स ओनली। Dustbin should be kept covered and cleared daily. And dustbin should be kept covered. वो covered होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि खुली पड़ी है उसके ऊपर फ्लाइज आ रही है या फिर मॉस्किटोज़ है, तो it is not healthy. तो our dustbin should be kept cover, वो covered होनी चाहिए and clear daily, उसे हम daily clear करेंगे। कचरे वाले भाई आते हैं ना, तो हम वहाँ हर रोज़ हमारी डस्टबिन खाली करेंगे और उसे क्लीन करेंगे। तो हम पहला काम क्या करेंगे हमारे घर को क्लीन रखने के लिए, हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन्स एंड डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड एंड क्लियर डेली। सेकेंड थिंग इज़ फ्लोर शुड बी क्लीन्ड डेली। हमारे फ्लोर्स है, हमारे घर के जो फ्लोर्स है वो ऑलवेज़ क्लीन होने चाहिए। हम हर रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, यस, तो उससे हमारा जो फ्लोर है वो क्लीन रहता है। वी शुड यूज़ अ जर्म किलर वाइल क्लीनिंग द फ्लोर। हम जब भी फ्लोर को क्लीन करें, जब भी पोछा लगाए, तो हम जर्म्स क्लीनर यूज़ करते हैं, लाइक लाइजोल, डेटोल है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे फ्लोर्स पे जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो वी शुड यूज़ अ जर्म क्लीनर। थर्ड पॉइंट इज़ वी शुड रेगुलरली डस्ट अवर हाउस। हमारे हाउस को हम रेगुलरली साफ़ करेंगे। डस्ट हो जाती है ना हमारे टीवी यूनिट में, देखो बेड पे या कहीं भी हमारे कबर्ड में, तो इट शुड बी क्लीन। तो ऑलवेज़ हमें उसकी डस्टिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। हमें हमारे बाथरूम्स और टॉयलेट्स है वो रेगुलरली क्लीन करनी चाहिए। द drains from the kitchen and bathroom should be well covered to keep away insects such as flies and cockroaches. हमारे किचन में और बाथरूम में ड्रेन्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए, वेल कवर। उससे क्या होता है, वहाँ से फ्लाइज या फिर कॉकरोचेस नहीं होते। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज things should be kept in their right place. हमारी घर में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से उसकी सही जगह पे होनी चाहिए। This way the house looks neat and tidy. इससे हमारा घर है वो नीट दिखेगा एकदम एंड टाइडी। And we need not waste time लुकिंग फॉर थिंग्स। और अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो वो उसे ढूंढने के लिए हमें टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे बुक्स है वो एक ही जगह पे एक ही शेल्फ में पड़े हुए हैं है ना, तो हमें अगर कोई भी बुक चाहिए तो हम वो शेल्फ खोलेंगे और वहाँ से ले लेंगे। पर अगर हम सारी बुक्स यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और अच्छे से जगह पे नहीं रखते तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा जब भी हमें बुक चाहिए। सो थिंग्स शुड बी
kept in the right place. वो अपनी सही जगह पे होनी चाहिए. This way the house looks neat and tidy, and we need not waste time looking for things. See, तो this is the way which we can keep our house clean, tidy and neat. Okay, so follow this rule and see. आज मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी. आपसे हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी मैं क्रिएटिवली जिसने अच्छी की है, क्रिएटिव की है. जैसे लास्ट एक्टिविटी में विश्वा पटेल करके है, उसने क्या करा, डॉक्टर का गेटअप लिया, पुलिसमैन बन गया और अच्छे से सारे रूल्स एंड अच्छे से जो पूरी फर्स्ट एड किट है वो सही प्रोनाउंस करके बोली. तो ऐसे बहुत सारे है, शानवी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसने ये करा है. तो अब से हम क्या करेंगे, एक्टिविटी जिसकी भी अच्छी होंगी उसे हम स्टार वाइज रैंक दूंगी. ओके, तो आज की हमारी एक्टिविटी है सी. आपको क्या करना है, फाइंड आउट हाउ हाउस होल्ड वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम योर होम. आप अपने होम से, घर से हमारा हाउस होल्ड का जो वेस्ट है वो कैसे रिमूव करते हैं. जैसे कि आप ये बना सकते हो, ये ग्रीन डस्टबिन है और ये जो है ये वेट डस्टबिन है और ये है ड्राई डस्टबिन. तो वेट डस्टबिन में क्या होता है, जो वेट चीज़ें होती है वो हम डालते हैं और जो ड्राई होती है उसमें ड्राई कचरा डालते हैं. तो ये आप बना सकते हो और इसमें क्या क्या वेस्ट जाता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे कि इन वेट वेस्ट डस्टबिन उसमें वेजिटेबल्स वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, एग शिल्स है, या फिर किचन का जो पानी का पूरा जो गीला कचरा होता है वो हम कहाँ डालते हैं, वेट डस्टबिन में. ओके, और हम क्या करते हैं, ड्राई डस्टबिन में क्या डालते हैं, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, रबर, ऑल दिस ड्राई वेस्ट शुड बी इन वेस्ट डस्टबिन. तो ये हुआ एक पॉइंट. सेकेंड, हमें क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यूज टू कीप द हाउस क्लीन. यानी हमें क्या करना है, एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिससे हम अलग अलग तरह से हमारे हाउस को हर रोज़ क्लीन रख सकें. तो आप ऐसे बना सकते हो, वीकली क्लीनिंग शेड्यूल बना के कि मंडे को ये करना है भाई, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे एंड संडे. सो ऐसे आप लिस्ट बना के प्लान कर सकते हो कि हाँ, हाउ टू कीप our house clean. Okay, to make this video and send it to me. जिसका भी वीडियो अच्छा होगा उनका वीडियो ग्रुप में मैं स्टार के साथ दूंगी. ओके, डन. सो स्टे हेल्दी एंड योर हाउस शुड बी क्लीन. आज से हर रोज़ कीप योर थिंग्स ऑन राइट प्लेस and try to keep your house clean. Okay, stay healthy.